Good morning, everyone. My name is Manpreet Singh, and I am teaching you applied mechanics in this semester. So we have started our second chapter, and we have studied up to the force system, what is a resultant force, and what is law of transmissibility, law of superposition. So today we are continuing our chapter number 2 from composition and resolution of coplanar and concurrent forces. After discussing this, we will discuss about what are the various methods of composition of forces like parallelogram law of forces and triangle law of forces. So starting the first topic, that is composition and resolution of coplanar and concurrent forces. Two or more than two forces can be replaced by a single resultant force which will produce the same external effect on the body as the given forces to which it replaces. This process of replacing the given forces by single resultant force is called composition of forces. Like we have already discussed in previous class, that if we are replacing two forces or more than two forces with a single force, then that force will be called as a resultant force. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस. तो जैसे हमने पिछली क्लास में रिजल्टेंट फोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस या दो से ज्यादा फोर्स लग रही हैं, उन फोर्सेस को अगर हम एक सिंगल फोर्स के साथ रिप्लेस कर दें, तो जो सिंगल फोर्स इसके साथ हम बाकी फोर्सेस को रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी. ठीक है जी. और इस प्रोसेस को जहां पर हम गिवन फोर्सेस को सिंगल रिजल्टेंट फोर्स से रिप्लेस करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस. In other words, composition of forces is the process of determining the resultant of a system of forces. If the combined effect of several forces P1, P2, P3, etc. acting on a body is same as that of the single force R, then R is called the resultant of P1, P2, P3, and the force P1, P2, P3 are called components of resultant force. So, method of composition of forces. The various law applied for finding the resultant of two coplanar and concurrent forces are: first one is parallelogram law of forces and second one is triangle law of forces. So basically जो आपको बताया है अभी तक कि अगर हम दो तीन फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स के साथ रिप्लेस कर दें, तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्लेसिंग the given forces by a single resultant force is called as composition of forces. और जो आपकी रिजल्टेंट है उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? जो भी फोर्सेस होगी, अगर हम बात करें P1, P2, P3, तो वो क्या होंगे? इसके कंपोनेंट्स होंगे. तो आज हम कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस का जो पहला मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्विकली, और उसके बाद इस डेफिनेशन को कैसे फॉर्म किया गया है, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रिजल्टेंट का, वो कैसे फॉर्म हुआ है, उसकी डेरिवेशन भी देखेंगे. So today we will discuss about parallelogram law of forces. So basically, what is parallelogram law of forces? The statement says if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection. So basically जो आपका पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस है वो ये कहता है कि अगर कोई भी दो फोर्सेस एक साथ एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? एक साथ. ठीक है. तो दो फोर्सेस एक साथ एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है, तो अगर हम उन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया है उसको हम ये अज्यूम करें कि पैरेललोग्राम की कोई दो साइड्स हैं. कौन सी दो साइड है? एडजेसेंट, यानी बिल्कुल साथ वाली. तो जो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा वो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया है आपको कि अगर किसी भी दो फोर्सेस को आप अज्यूम कर रहे हो, किसी पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक साथ, तो उन पार्टिकल्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? जो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डायगोनल फॉर्म होगा पैरेललोग्राम का, वो उन दोनों फोर्सेस का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा. ठीक है जी. तो बेसिकली ये स्टेटमेंट आपकी आती है सेक्शन बी में. ठीक है. या फिर अगर आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हो तो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की डेरिवेशन आती है.
उस डेरिवेशन में बेसिकली हमने करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको ये मैथमेटिकली रिजल्टेंट फोर्स का जो एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ है, आर इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो ये एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ है, टेन अल्फा का एक्सप्रेशन है F2 साइन थीटा F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ है, इसकी डेरिवेशन 10 मार्क्स में आती है। अगर आपको सेक्शन बी में आता है 5 मार्क्स में, डिफाइन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, इसका डायग्राम बनाना है और साथ में ये एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है जी। तो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है अपने क्वेश्चन को जिस हिसाब से आपको मार्क्स बताए हुए हैं। So we can easily discuss this statement with the help of this diagram. Let two forces P1 and P2 acting simultaneously at O. यानी जो दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं वो एक साथ एक पॉइंट पर एक्ट हो रही हैं, वो पॉइंट कौन सा है, O पॉइंट है। तो हमने दो फोर्सेस बना ली, एक फोर्स हमारे पास है P1, दूसरी फोर्स है P2। अब उनका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये एरो से आपको पता लग रहा है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड P1 दिया होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड P2 दिया होगा, डायरेक्शन भी दिया होगा। ठीक है। और हमने क्या कर दिया इसको, हमने क्या अर्ज्यूम किया इसको कि ये एडजेसेंट साइड है और जिसको हमने नाम दे दिया OA एंड OB। ठीक है। पैरेललोग्राम है आपका OACB। उस OACB पैरेललोग्राम में जो दो एडजेसेंट साइड है OA एंड OB, वो क्या है आपकी, जो हम साइड्स कंसिडर करें। अब इन दोनों साइड्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, डायगोनल होगा, जो इसी पॉइंट से जा रहा है। अब डायगोनल तो हम इस तरफ भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने रट्टा नहीं मारना, अपनी चीजों को समझना है। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो डायगोनल ऐसे भी बन सकता है। ठीक है। बट हमारा डायगोनल कौन सा होगा, जो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है जहां से आपकी दो लाइनें जा रही हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये आपका डायगोनल बन रहा है। तो ये जो डायगोनल बना है ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्सेस का। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, देन द रिजल्टेंट आर ऑफ फोर्सेस OA एंड OB may be represented in magnitude and direction by the diagonal OC of the parallelogram। तो ये जो OC डायगोनल है वो क्या है आपका, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। The magnitude and direction of the resultant can be determined by the following methods। अब अगर हमने इस रिजल्टेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड पता करना है या डायरेक्शन पता करना है, तो वो कैसे पता कर सकते हैं हम, हमारे पास दो मेथड है, एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस का, उसमें आपको जो बताया गया था वो था ग्राफिकल मेथड। तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस किया था विद द हेल्प ऑफ ग्रेव्स एंड अपरेटस, उसी तरीके से ग्राफिकल मेथड के हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस वाला भी कर सकते हैं। ठीक है। बट आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस ही दिया गया था, इसलिए हमने डायरेक्टली वही परफॉर्म किया था। तो आज हम जो आपका एनालिटिकल मेथड है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करने का, वो डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। इन केस अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। तो एनालिटिकल मेथड में हमने क्या क्या किया है, जो आपका डायग्राम है वो अभी जो हमने फॉलो किया है वही यूज करेंगे। ठीक है। और इस डायग्राम में आपने क्या क्या चीजें अज्यूम करनी है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Let us consider two forces P1 and P2 acting at an inclination theta to each other produces the line OA and the draw perpendicular from C on this line. This line meets at point D as shown in figure 2.28। तो बेसिकली आपको इस डायग्राम की बात कर रहे हैं कि हमने क्या क्या कंसिडर किया। हमने दो फोर्सेस कंसिडर किए हैं, एक आपकी है फोर्स P1 और दूसरी है P2, जो कहाँ पर मीट कर रही है, O पॉइंट पर, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में थीटा एंगल है। तो हमने क्या किया, इस OA फोर्स को थोड़ा एक्सटेंड किया D तक और एक परपेंडिकुलर फॉर्म किया जो C से मीट कर रहा है। तो जो CD है वो आपका परपेंडिकुलर है, OA को हमने एक्सटेंड कर दिया अप टू D। ठीक है। यहाँ तो सबको क्लियर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, दो फोर्सेस कंसिडर की, थीटा एंगल पर थी वो, और वहां से लाइन OA को हमने एक्सटेंड कर दिया और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया C से। ठीक है। दीज लाइन मीट्स एट पॉइंट D। तो आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। OA से हमने लाइन एक्सटेंड की, C से परपेंडिकुलर बनाया जो D पर मिल गया। ठीक है।
फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी हैव CAD इक्वल टू BOA थीटा, यानी जो आपका एंगल CAD है वो भी एंगल क्या होगा, BOA होगा, दोनों एंगल सेम होंगे, थीटा होंगे। तो सबसे पहले कौन सा आपका CAD, और नेक्स्ट एंगल कौन सा बताया आपको, BOA, यानी BOA। तो CAD एंड BOA कौन से एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं ये। अगर आप यहाँ से फॉर्म करो कि ये जो आपका CAD है और ये बन रहा है आपका BOA, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से जो थीटा आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा, यानी जितना एंगल आपका ये बना है P1 P2 के बीच में वही आपका इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि ज्योमेट्री से हमें पता लग गया कि एंगल जो CAD है वो BO के बराबर है, यानी थीटा है। Since AC is equal and parallel to AB, we get AC equal to P2, यानी जो हमारे पास AC लाइन है, अब आपको पता है कि AC लाइन क्या है, इस OB लाइन के पैरेलल है। तो अगर OB की वैल्यू P2 है तो जो AC है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, P2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लिख दिया AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, P2। Therefore AD equal to P2 cos theta and DC equal to P2 sin theta। तो ये जो हमने लिखा है बेसिकली हमने फॉर्मूला यूज किया साइन थीटा और कॉस थीटा का। जैसे आपको यहाँ पर विजिबल होगा कि साइन थीटा क्या होता है और कॉस थीटा क्या होता है। साइन थीटा को लिखा है DC अपॉन AC और कॉस थीटा को लिखा है AD अपॉन AC। तो अगर हम टेक्नोमेट्री की बात करें, थोड़ी बहुत टेक्नोमेट्री आपकी यूज होगी इसमें, तो हम बेसिकली पहले मैं आपको बता देता हूँ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। अगर बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अगर बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम डायग्राम के साथ इसको डिस्कस करते हैं कि ये DCAC और EDAC कैसे आया। मूविंग फॉरवर्ड टू द प्रीवियस स्लाइड, तो हमारे पास ये डायग्राम है। साइन थीटा जैसे मैंने आपको बताया कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या दिया है हमें, CD दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये CD लिखा हुआ है, CD लिख सकते हो या DC लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, DC या CD कुछ भी लिख दो। और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये AC है। सिमिलरली जो आपका कॉस थीटा है वो दिया आपको AD अपॉन AC। AD क्या है आपका, बेस है। देखो AD लिखा हुआ है यहाँ पर, AD बेस है और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो हमारा जो फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसमें हमने दोनों साइड्स का नाम लिख दिया, DCAC और ADAC। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। इन केस यहाँ तक कोई भी डाउट है, आपको साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पता चल रहा, तो आप पूछ सकते हो, या अगर आप चाहते हो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ साइन थीटा की वैल्यू। अगर सबको क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर तो आप बता सकते हो। हमने क्या लिखा था कि AC क्या है, वो इक्वल है और पैरेलल है OB के, तो हमें AC की वैल्यू आ गई थी P2। यानी जो आपका ये एक्सप्रेशन है, जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन विजिबल हो रहा है, यहाँ पर मैं P2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी AC लिखा है, AC की जगह मैं क्या लिख दूंगा, P2। तो अगर मैं यहाँ पर P2 लिख दूंगा तो मेरे पास DC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, मेरे पास AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी मेरे पास जो AD की वैल्यू आएगी, यहाँ पर जब मैं P2 लिख दूंगा मेरे पास आएगी P2 cos थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया AD इक्वल टू P2 cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ इस एक्सप्रेशन की, AC में मैं लिख सकता हूँ P2, क्योंकि हमें वैल्यू मिल गई थी AC की P2। तो DC की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो P2 sin थीटा आ जाएगी। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई DC इक्वल टू P2 sin थीटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कुछ सब कुछ। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ODC, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है आपका, आपको यहाँ विजिबल है ODC, यानी ये बड़ा ट्राइंगल हमने एज्यूम किया है इन राइट ट्राइंगल ODC। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपने पाइथागोरस थ्योरम सभी ने सुनी हुई है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये क्या होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, OC, और जो मेरे पास बेस है वो क्या है, OD, और जो मेरे पास परपेंडिकुलर है वो क्या है, DC। अब अगर मैं बेस की बात करूं, अगर मैं ये बड़ा ट्रायंगल अज्यूम कर रहा हूं OCD, इसमें जो मेरा बेस है वो क्या है,
ओ ए प्लस ए डी, यानी वैसे तो पूरा ओ डी है, बट अगर मैं इसको टोटल जो आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ डी को मैं लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ए डी। ठीक है, अब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सब कुछ हम वहां पर देखते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था उसको हमने दूसरी तरफ ले गए तो वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ठीक है, हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें सिर्फ रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हमने हाइपोटेन्यूज को इक्वल टू के इधर भेज दिया, वो रूट फॉर्म हो गया, और ये आपका कौन सा है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ओडी को क्या लिख सकते हैं हम, ओडी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी। अभी हमने देखा था डायग्राम में कि जो आपका ओडी है वो किसके बराबर है, ओ ए प्लस ए डी के बराबर। तो हमने क्या किया, इस ओडी में क्या वैल्यू पुट कर दी, ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर, और सी डी हमारे पास पहले अवेलेबल है तो सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू थी, अगर मैं बात करूं ओ ए की तो हमें पता है कि P1 है, ए डी हमने अभी निकाला था बाय यूजिंग साइन थीटा कॉस थीटा, और डीसी भी हमने निकाला था बाय यूजिंग साइन थीटा। तो मेरे पास ये वैल्यू है एडी की, डीसी की, ओ ए की वैल्यू क्या आएगी P1, एडी की वैल्यू क्या निकाली थी P2 cos थीटा, तो मैंने एडी की जगह लिख दिया P2 cos थीटा, इसको होल स्क्वायर कर दिया। डीसी की वैल्यू क्या है मेरे पास P2 sin थीटा, तो मैंने यहाँ पर P2 sin थीटा लिख दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक बेटा सभी को क्लियर है, इन केस कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। तो हमने ओडी की वैल्यू पुट कर दी, ओडी की वैल्यू ओ ए प्लस ए डी, सी डी को एज इट इज रहने दिया। ओ ए की वैल्यू थी हमारे पास P1, ए डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी P2 cos थीटा, और सी डी की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने P2 sin थीटा। ठीक है, आपके पास वैल्यू सामने दिख रही है, सब कुछ विजिबल है। अब देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला जो हमारा कौन सा बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, यानी जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उसको हमने यहाँ पर बना देना, इसको एज इट इज रहने देना। तो मैंने क्या किया, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले ए का स्क्वायर, मैंने यहाँ पर ए का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा बी का स्क्वायर, तो ये मैंने पूरे बी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, पूरा बी क्या था, यानी P2 का भी स्क्वायर और cos थीटा का भी स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या होता है प्लस 2ab, तो प्लस लिख दिया, 2 लिख दिया, ये a क्या था P1 लिख दिया, b क्या था P2 cos थीटा, तो वो भी लिख दिया। लास्ट में मेरे पास क्या था P2 sin थीटा का स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया P2 को स्क्वायर निकल दिया, sin थीटा का भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, कुछ भी नहीं किया हमने, बस हमने a प्लस बी का फॉर्मूला जो बन रहा था उसको ओपन कर दिया। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है, मैंने P1 का स्क्वायर बिल्कुल एज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या बन रहा था P2 का स्क्वायर, वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर मेरे पास दो चीजें कॉमन आ रही हैं। अगर P2 स्क्वायर की बात करूं मैं, तो यहाँ पर P2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, और इस एक्सप्रेशन में मेरे पास P2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो इन दोनों वैल्यूज में अगर मैं P2 स्क्वायर कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूं P2 स्क्वायर, तो मेरे पास सिर्फ sin स्क्वायर थीटा रह जाएगा। इसमें से भी अगर मैं P2 स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में से मैंने P2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अंदर क्या रह गया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो P2 स्क्वायर बाहर रह गया। अगर आपने क्रॉस चेक करना है तो इसको दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई कर लो। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, ये वाली वैल्यू बन जाएगी P2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जब इस वैल्यू को अंदर मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, P2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों के बीच में साइन भी कौन सा है, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कहीं पर कुछ गलती तो नहीं हो रही। उसके बाद क्या रहता था हमारे पास 2P1 P2 cos थीटा, तो वो हमने एज इट इज लिख दिया।
ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर है। तो मूविंग फर्दर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन में क्या पता चलता है कि जो हमारी वैल्यू है, यानी जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप बता देना, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। तो ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज हैं, जैसे हमने यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू यूज किया था, कॉस थीटा का, सिमिलरली अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। तो हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट में हमारे पास अवेलेबल था इसमें क्या आ जाएगा, 1। तो जो हमारे पास रिमेनिंग था उसको हमने एज इट इज रूट में लिख दिया, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर, इसकी जगह 1 आ गया, बाकी जो रहता था प्लस p1 p1 p2 कॉस थीटा। तो ये आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई है। तो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यानी कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो रिजल्टेंट है ये क्या है, आपका पैरेललोग्राम का डायगोनल है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो हमें प्रॉपर्ली पता चल रहा है कि ये जो आर क्या है, रिजल्टेंट है। बट ये रिजल्टेंट किसी सर्टेन एंगल पर बन रहा है, वो जो एंगल है वो क्या है, अल्फा एंगल। वो अल्फा एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका हमारे पास एक्सप्रेशन है, लेट द रिजल्टेंट OC मेक्स एन एंगल अल्फा विद OA एज शोन इन फिगर 2.28। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो OC रिजल्टेंट है वो OA के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, टेन अल्फा, यानी टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, CD, और बेस क्या दिया हुआ है हमें, OD। तो जैसे हमने पहले ही देखा था कि CD क्या है आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या है OD। तो OD को हमने क्या लिखा था, OA प्लस AD। तो सिमिलरली वैसे हमने क्या लिख दिया, CD को एज इट इज लिख दिया और OD को क्या लिख दिया हमने, OA प्लस AD। तो CD की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, P2 साइन थीटा। देखो यहाँ पर P2 साइन थीटा लिख दिया। OA की वैल्यू क्या थी हमारे पास, P1 थी वैल्यू OA की। तो आप दोबारा से डायग्राम में चेक कर सकते हो, OA की वैल्यू क्या है हमारे पास, P1। तो हमने एज इट इज लिख दिया P1। AD की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, P2 cos थीटा। तो ये भी हमने लिख दिया P2 cos थीटा। यानी अगर हमें अल्फा एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू P2 sin थीटा एंड P1 प्लस P2 cos थीटा। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये आपकी डेरिवेशन जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको डेरिवेशन एग्जाम में आती है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद अगर 10 नंबर में आती है उस हिसाब से बता रहा हूं मैं, डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप। अगर ये एक्सप्रेशन नहीं लिखने आपने तो सीधा आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि दो फोर्सेस है P1 P2, वो थीटा एंगल पर लग रही हैं, रिजल्टेंट R है। उसके बाद आपने क्या किया, हमने क्या लिख दिया आगे कि हमने नेक्स्ट इस पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर दिया, यानी जो लाइंस थी वो एक्सटेंड कर दी, किस हिसाब से, OA को एक्सटेंड कर दिया AD तक, ताकि C से जो परपेंडिकुलर फॉर्म हो सके। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया था, हमने ज्योमेट्री ऑफ द फिगर थीटा निकाल दिया। बाद में आपने देखा कि AC किसके पैरेलल है, OB के, हमारे पास P2 की वैल्यू आ गई, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमने ये वैल्यूज निकालने के बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज की, उसके बाद वैल्यूज पुट की, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आता था वो निकाला और ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। यानी अगर शॉर्ट में बात करें, अगर आपने इसमें याद क्या चीज रखनी है, ये वैल्यू याद रखनी है रिजल्टेंट की और ये वैल्यू याद रखनी है tan अल्फा की। तो जो आपकी डेरिवेशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की वो कंप्लीट हो चुकी है। इन केस अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। तो बेसिकली अगर 10 मार्क्स में है तो आपने ये सारा यहाँ तक कंप्लीट करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो सिर्फ आपने इतना ही लिखना है जितना आपको अभी स्क्रीन पर विजिबल है, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के साथ आप ज्यादा से ज्यादा ये डायग्राम बना सकते हो। अगर आप ये डायग्राम बना रहे हो तो इसमें एडी और ये सिग्नल नहीं दिखाना, अगर 5 नंबर में बता रहे हो। ठीक है, ये जो हमने OA से AD तक लाइन एक्सटेंड की है, C से परपेंडिकुलर बनाया है, ये डेरिवेशन में ही करना है आपको। ठीक है, तो अगर 5 मार्क्स में आता है स्टेटमेंट के साथ डायग्राम, उसके बाद ये फॉर्मूले लिख दो आप रिजल्टेंट है tan अल्फा के, और ये सभी वैल्यूज लिख दो कि F1 क्या है, फोर्स है, ठीक है, थीटा क्या है आपका एंगल है, अल्फा क्या है रिजल्टेंट वाला एंगल है।
तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, यानी डेरिवेशन आपको कंप्लीटली पता चल रही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की. In next class, we will discuss the numerical based upon parallelogram law of forces. Thank you very much for your time.